It's a pleasure again to be in the presence of the Lord. परमेश्वर के सन्निधि में दोबारा से इस तरह रहना बहुत आनंद की बात है। Let us beseech Him now that He speak to every one of us and minister to us. परमेश्वर अपने सबसे बात करे, वैसे आप सब जने प्रार्थना के साथ रहेंगे। Let us ask Him to open our ears and our hearts. अपने हृदय को, अपने कानों को उनका वचन सुनने के लिए खोलो बोल के अपन परमेश्वर से पूछेंगे। This will be life to you. ये अपने लिए जीवन है, It will give you eternal life. अपने सबको ये अनंत जीवन देगा। A man who keeps my words, he will never see death, is what Jesus has said. यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वहाँ अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। If this is lies, अगर ये झूठ है तो please go away from here. यहाँ से मेहरबानी करके चले जाइए। No use. अपने को कोई लाभ नहीं रहता। No use of simply believing Jesus, Jesus. खाली प्रभु प्रभु कहने से कुछ लाभ नहीं है। The gates of hell will not prevail against you. आंधों के फाटक तुम पर प्रबल नहीं हो सकते। When? कब? When you keep His words. उनके वचन पर चलने से। Only then you will be delivered. तभी अपन छुड़ाए जाएंगे। Of late the Lord has been, I think 4 days ago at morning 1:30 the Lord woke me up. 4 दिन पहले सवेरे 1 बजे परमेश्वर मुझे उठाए। I wanted to sleep. मैं सोना चाह रहा था। I could feel the Holy Spirit telling, if you love me, you work for me. पवित्र आत्मा परमेश्वर बोले, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उठो और मेरा काम करो बोले। It was during that time the Lord has been giving me a type of photos or slides preparations that can enable us to perfectly understand His purposes. तो वो समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर ये स्लाइड और ये फोटो अपने को दिए, उसको देखे तो अपने को समझ में आता। It is not clear because of the lighting. ये रोशनी है, उसकी वजह से वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। But you can roughly see what is written given here. यहाँ पर क्या है अपन देख सकते। These I say are the stones. ये बॉक्सों में जो कुछ भी दिखाई दे रहे वो पत्थर है। And this indicates the saved souls. ये क्या है बोले तो उद्धार पाए सो आत्माएं है। And this is the spiritual building of the Father. पिता बना रहे सो आत्मिक संबंधी इमारत है ये। See, these are lively stones, living stones. ये सब जीवित पत्थर है। It is in a spiritual dimension that you should understand. सब जने आत्मा संबंधी सोच से इसको सोचना। It is shown in a physical proximity. भौतिक रीति से हम इसको बता रहे। But you should understand it that they are living stones, but they are spread. They are walking around individually, worshiping and serving the Lord wherever they are. आत्मिक संबंधी पत्थर है ये, जीवित पत्थर। ये प्रभु में उद्धार पाके वहाँ वहाँ आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे और सेवा कर रहे। Here the foundation is Jesus the Christ. यहाँ पर ऐसा बुनियाद यीशु मसीह है। And I have not shown a cornerstone, but this is the cornerstone. यहाँ पर कोने का पत्थर नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर कोने का पत्थर है। And it is by him that the rest of the building, the stones, वो कोने के पत्थर से ही ये पूरी इमारत खड़ी हुई। and this is Peter, Kepha, यहाँ पर पतरस, कैफा है, his brother Andrew, उनके भाई आंद्रिया, Bartholomew. बर्तलोमियो। He is there in Matthew. It's written, but what he has done we do not know. मत्ती रचित समाचार में उनके बारे में है, लेकिन उन्होंने क्या करे अपने को पता नहीं है। What miracles he has done we do not know. उन्होंने क्या अद्भुत कार्य करे अपने को पता नहीं है। Forget about he is a living stone. ये सब भूल जाए, लेकिन वो एक जीवित पत्थर है। He has served the Lord Jesus. इन्होंने यीशु प्रभु की सेवा की है। James, the son of Zebedee. जबदे का पुत्र याकूब, John, the son of Zebedee. जबदे का पुत्र योहान, James, the son of Alphaeus. अल्फाई के पुत्र याकूब, Lebbaeus, Thaddeus, तद्दै, Matthew, मत्ती, Philip, फिलिप, Thomas, थोमा, Simon the Canaanite. कनानी है सो सिमोन। And here is the famous fight. बहुत मशहूर है सो इस्करियोती यहूदा। What is that color? वो रंग कौन सा है? Black. काला है। But white is there. सफेद भी है। Judas Iscariot in white. यहूदा इस्करियोत के अक्षर लेकिन सफेद है। So this is the wall, let us say, of the spiritual building which Jesus our Lord has been constructed. यीशु मसीह बना रहे सो आत्मिक घर की दीवार है ये। He said before going to the Father, he said, them that you have given me I have kept in the world, but the son of perdition, that guy he has gone. तो यीशु मसीह पिता से बोले, तुमने जो लोग मुझे दिए थे मैंने उनकी रखवाली की है, परंतु विनाश का पुत्र चले गया। That is, he is interacting with these stones. तो यीशु मसीह हमेशा ये पत्थरों से बातें करते रहते थे। He prayed to the Father. पिता से प्रार्थना करते थे। All the night he prayed. पूरी रात प्रार्थना किए। And according to the revelation of the Father, whom he should call to himself, तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह को जो प्रकाशन दिए थे, किसको बुलाना है वो बोल के जो प्रकाशन दिए थे वो बुलावट से। so he went to Peter and
Andrew. पतरस और आंद्रिया के पास गए। They were fishing. वो लोग मछली पकड़ रहे थे। Jesus said, यीशु मसीह बोले उनसे, "Come, follow me, आओ और मेरे पीछे हो लो बोले। and I shall make you fishers of men." मनुष्य को पकड़ने वाले मछुए मैं तुम्हें बनाऊंगा बोले। They threw away their nets, वो लोग अपने जाल उधर फेंक दिए, left their ships, उनकी नावें वहां पर छोड़ दिए, and they started following Jesus. यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ किए। Jesus went again. यीशु मसीह दोबारा गए। Very rich people. बहुत धनवान थे वो। John and James. यूहन्ना और याकूब बहुत धनवान थे। They got many hired servants also working for them under them for fishing. उनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते थे मछलियां पकड़ने के लिए। John has got his own home in Jerusalem. यूहन्ना को यरूशलेम में उनका खुद का घर भी है। How many of you have got home in Hyderabad? आप में से कितने लोगों का हैदराबाद में खुद का घर है? Own home. खुद का घर। How happy you are? कितने खुश है। John has a home in Jerusalem. यूहन्ना को यरूशलेम में खुद का घर है। Very rich man. बहुत धनवान है। But when the call came and Jesus said, "Come," यीशु मसीह उनको मेरे पीछे हो लो बोल के बुलाए तब they left everything and started. सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल दिए। Likewise, these all the people were called by Jesus. ये सब जने यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए सो वाले हैं। And he told all the 12, 12 लोग शिष्यों से क्या बोल रहे बोले तो, "You should be with me. तुम मेरे साथ रहना, Day and night you should be with me. रात दिन मेरे साथ रहना। You should forget about your fishing business and all businesses. अपने मछली पकड़ने के काम और दूसरे सारे कामों को भूल जाओ। You forget about your wife, your father, your daughter and son. अपने माता पिता पत्नी बच्चों के बारे में आप भूल जाना। You should be with me. तुम मेरे साथ ही रहना। Wherever I go, you should come. मैं किधर भी जाता हूँ तुम मेरे साथ आना। Whatever I'm doing, you should do." मैं क्या करता हूँ वो तुम देखना। And like that with them, he was there day and night and they were with him day and night. वैसे यीशु मसीह शिष्यों के साथ रात दिन रहते थे, वैसे शिष्य भी यीशु मसीह के साथ रात दिन रहते थे। And when I tell you to go, you go. मैं तुम्हें जाओ बोलूंगा तभी तुम जाना। So likewise, they were there for 3 years and a half with Jesus. 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ ही शिष्य थे। And sometimes he said, "You go there and preach the gospel. तो कभी कभी तुम उधर जाके सुसमाचार को फैलाओ बोलते थे। Don't go as beggars. भिखारियों के जैसा नहीं जाना। The laborer is worthy of the hire. काम वाला मजदूरी का हकदार है, इसलिए I will make you to do miracles. तुम चमत्कार करो, वैसे मैं तुम्हें बदल दूंगा। In my name cast out devils. मेरे नाम से तुम शैतान को भगाओगे बोले, Raise the dead. मृत्युओं को फिर उठाओगे बोले, Heal the lepers. कोड़ियों को चंगा करोगे बोले, Heal the sick. बीमारों को चंगा करोगे। Okay, okay. Jesus, we will go. ठीक है प्रभु जी, बहुत खुशी की बात है, हम लोग जाते बोले। Did they go there and go back to their homes? जाके उनके घरों को चले गए क्या वो लोग? You people might be thinking, how long this fellow is talking? It's nice for me to go home now. तो आप लोग सोच रहे शायद कब छोड़ते कि कब घर को चले जाना के बोल के। Because home is so nice. घर बहुत अच्छा रहता है ना अपने को, But they didn't do that. लेकिन शिष्य ऐसा नहीं करे। They went to village. गांव गांव चले गए वो लोग। Found out who was worthy in that troop. जो वो गांव में योग्य है उनके घर में रुको बोल के प्रभु बोले, वो ढूंढ रहे थे। And they stayed there. वो लोग वहाँ पर रहे। And whatever they gave, they eat. वो लोग जो दिए वो खाए। Why did you not prepare chicken biryani? They did not say. कभी भी हमारे लिए चिकन बिरयानी क्यों नहीं बनाया बोल के नहीं पूछे। Don't know, I'm a fisherman. I always eat only fish. आपको पता नहीं क्या मैं मछुआरा हूँ, मुझे मछली बहुत पसंद है, आप मछली क्यों नहीं बनाए बोल के कभी नहीं पूछे। Whatever they gave, they ate. वो लोग जो दिए वो खाए। And they didn't keep quiet. वो लोग चुपचाप नहीं रहे, प्रभु का काम करे, They did the work of the gospel. सुसमाचार का काम करे उधर, They preached the gospel. सुसमाचार प्रचार करे उधर, And they healed the sick. कई बीमारों को चंगा करे। You know, that spirit anointing was a temporary thing. जो अभिषेक उन्हें दिया गया वो तात्काल का ही था। It was just like the spirit which was received by Elisha or Elijah or the Old Testament prophet. पुराने नियम में एलीशा एलिया को किस तरह का अभिषेक था, उसी तरह का अभिषेक था वो। With that power, they went and did those miracles. वो सामर्थ्य से वो लोग गाँव में जाके चमत्कार करे। And they returned happयली to Jesus. यीशु मसीह के पास आनंद से लौट आए। And they were telling him, "See, these things happen. Even devils are subject to us in your name." तो यीशु मसीह को बोले कि हम वो काम करें, ये काम करें, आपके नाम से हम शैतान भी हमारे वश में है बोल के बोले। Forget about it. वो सब भूल जाओ बोले। That's nothing at all. ये कुछ भी नहीं है। Rather rejoice that your names are written in heaven. किसमें तुम आनंद करना बोले तो तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, उसमें तुम आनंद करना। So he was teaching them that your names, when they are written in heaven, the gates of hell will not prevail against you. उनको समझा रहे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, तो आंधो लोग के फाटक तुम पर प्रबल नहीं हो सकते। This Judas Iscariot also cast out devils. यहूदा इस्करियोत भी दुष्ट आत्माओं को भगाए, He has raised the dead. मुर्दों को भी उठाए, He has done many miracles. बहुत चमत्कार करे, He also came happily and was telling. वापिस आके
आनंद से जो जो चमत्कार करे वो यीशु मसीह को बताए। But Jesus was keeping him too. यीशु उसकी भी रखवाली कर रहे थे। How many times before he went to the cross, Jesus told his disciples when they were alone that he is going to go to Jerusalem, where he is going to be rejected, where he is going to be mocked, scourged, and crucified. But on the third day, I will rise up again. How many times did he tell that? क्रूस पर जाने से पहले अकेले में शिष्यों से यीशु मसीह कितने बार बताए कि वे यरूशलेम जाने वाले हैं और वहाँ मनुष्यों का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसको ठुकराएंगे, ठट्टों में उड़ाएंगे, कोड़ों से मारेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा बोल के यीशु मसीह बोले। But he was telling to whom? All these words? ये विषय पूरे यीशु मसीह किसके साथ बोल रहे हैं? To these 12 apostles. वो 12 प्रेरितों से बोल रहे हैं। Even Judas the Iscariot was also hearing it. वहाँ पर यहूदी इसकारियत भी सुन रहा है। He is hearing it, उन्हें सुन रहे, but he didn't fear. उन्हें कुछ भी नहीं डरे। Others were doing the work in a good heart. अच्छे हृदय से, अच्छे मन से बाकी शिष्य पूरे प्रभु बोले सो काम कर रहे। But how did the son of perdition go to and be destroyed? तो फिर विनाश के पुत्र खुद ही जाके कैसे नाश हो गए? He is filled with darkness. वो अंधेरे से भर गए। His love for money has destroyed him. उन्होंने पैसों से प्रेम करे वही उनको नाश कर दिए। It was he who was the treasurer for that church. वो कलीसिया में यहूदा इस्करियोत कोषाधिकारी भी थे, Yeah, but he was not giving to the poor. लेकिन उन्होंने कभी भी गरीबों को कुछ भी नहीं देते थे। He was putting it into his own account. वो अपनी ही जेब में रखते थे यहूदा। I do not know what all he has purchased. क्या क्या खरीद लिया कि अपने को तो पता नहीं, लेकिन It is written field, उनका खेत बोल के लिख के है, but what all else he has purchased, only God knows. और क्या क्या खरीदे वो परमेश्वर को ही पता है। Why? क्यों? If you know the answer, अगर आपको जवाब मालूम है तो you will build your lives according to these 11 apostles and not according to that. तो इस्करियोत यहूदा क्यों ऐसा करे बोल के अगर आपको मालूम हुआ तो आप उसके जैसे नहीं रहते, लेकिन ये 11 प्रेरितों के जैसे रहते। See, even John will be only in the bosom of Jesus, यूहन्ना हमेशा यीशु मसीह के बाजू में ही रहते थे, but Judas is such a person, he goes always kisses Jesus. तो इस्करियोत यहूदा हमेशा यीशु मसीह को चुम्बन करता था। For 3 years he is going on kissing him. 3.5 साल तक भी यीशु मसीह को चुम्बन करते ही आए इस्करियोत यहूदा। Even while going to betray him, he forgot that he should not do it. उन्हें यीशु मसीह को सौंप देते समय भी चुमा लिए। How much are your kisses of Jesus genuine? तो आप उन यीशु मसीह को करते सो चुम्बन कितनी खरी है। He was loving money उन्हें पैसों से प्रेम करते थे। and he was fond of earthly possession. ये संसार में सो चीजों पे आशा रखे सो व्यक्ति की तरह है। It is Satan who caught hold of him. शैतान उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। It is written in Psalm 109 109 भजन में लिख के है, about those who don't show mercy to the poor. जो कोई भी गरीबों पर दया नहीं रखता, Jesus has made a prayer. यीशु मसीह एक प्रार्थना करे, That is the imprecatory prayer they say. उसको लानत की प्रार्थना बोलते। That means he is asking for Father to deal with that person. इसका मतलब ये है कि उन्होंने पिता से मांगे कि उसका फैसला तुम करो। You can read that. तुम पढ़ सकते हैं 109 भजन में। Very frightening it is. बहुत डर लगता वो पढ़े तो। He said, let a wicked man be set over him. तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख बोल के जो प्रार्थना है। Second thing, let Satan stand at his right hand. दूसरा, विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। It is written. ये लिखा है। Jesus has prayed यीशु मसीह प्रार्थना करे that Satan should stand at his right hand. विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे बोल के प्रार्थना किए। When Satan stands at the right side, विरोधी किसी व्यक्ति के भी दाहिनी ओर खड़ा रहा तो he will get many thoughts. उसको बहुत विचार आते। That investment, this and that, and this and that, worldly things. तो वो करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, वो करेंगे बोल के ऐसी सोच बहुत आती। David has kept the Lord always on his front of him, on his right side he was. दावीद हमेशा परमेश्वर को अपने दाहिनी ओर रखे, अपने आंखों के सामने रखे। So, but because of Satan being with him, शैतान भी उनके साथ में था, इसलिए he betrayed the Lord with 30 pieces of silver. यहूदा इस्करियोत तो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिए। He took the Lord's table यीशु मसीह के साथ में उन्होंने प्रभु भोजन में भाग लिया। while he was getting up to go. उठ के चले जाते समय Jesus said, यीशु मसीह बोले, do what you're doing, do it quickly. तुम जो कुछ भी करना चाह रहे हो जल्दी से करो बोले। Jesus has been dealing with Judas for 3 years and more. 3 साल से भी ज्यादा यहूदा इस्करियोत के साथ में यीशु मसीह अच्छा व्यवहार करते हुए आए। Every time he was teaching these 12 people, it was also to teach that Judas Iscariot
that he should not betray. हर बार यीशु मसीह 12 शिष्यों को सिखाते थे, तब यहूदा इस्करियोत को भी मालूम होना था कि वो विश्वासघाती ना बने। And directly he also once said, there are 12 who are there left with me and one of you is a devil. तो यीशु मसीह उन लोगों को बोले कि तुम 12 लोग मेरे साथ ठहरे हो, लेकिन तुम में से एक व्यक्ति शैतान है बोल के डायरेक्ट बोले थे। But he did not fear God. लेकिन कभी भी परमेश्वर से यहूदा इस्करियोत नहीं डरा। He was filled with the love of this world. ये संसार के संबंधी प्रेम से उन्हें भर के था। He made a business activity of this calling. जो बुलावट के लिए उसको बुलाया गया, वो बुलावट को उन्होंने एक व्यापार बना दिया। And it was he that sold the Lord for such an amount. तो उन्होंने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। Before even Jesus died, he fell down, he committed suicide. तो यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले ही जाके अपने आप को फांसी लगा दिया। It is said that he fell down, he tried to hang himself. तो वो अपने आप को फांसी लगाने गया, लेकिन गिर गया। Why? क्यों? He is not filled with the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा से भर के नहीं थे क्या? He is not filled with the Word of God. परमेश्वर के वचन से भरपूर नहीं थे क्या? But because of this greed, he got filled with Satan. तो ये पैसों के लालच की वजह से वो शैतान से भर गया। It is written, Satan filled in. शैतान यहूदा इस्करियोत में समा गया। And because of that, उसके कारण he got that thought that he should commit suicide. उस कारण से ही उन्हें आत्महत्या करना बोल के वो सोच यहूदा इस्करियोत को आई। It is a special suicide. वो एक खास आत्महत्या है। When he fell down, उन्होंने नीचे गिर गए तब his bowels burst उनका पेट फट गया, and his bowels came out. उनके आंतड़ियां पूरे बाहर आ गई थे। Why? क्यों? You read Psalm 109. 109 भजन आप पढ़िए। As he loved to curse, वो शाप देने से प्रीति रखता था, let that cursing come into his own belly. और ये शाप उसके पेट में समा जाने दो। It is written in Psalm 109. 109 भजन में ऐसा लिखा है। Entire thing is written, let his children be fatherless and his wife a widow. ये सब लिखा हुआ है कि उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए। And let his bishopric let another man take. और लिखा है कि उसका पद दूसरा ले ले। That means he is gone. इसका मतलब उन्होंने नाश हो गया। This stone has gone. ये पत्थर निकाल दिया गया। And in his place God chose another person. वो स्थान पर परमेश्वर दूसरे पत्थर को चुने। So it is nice to be built up upon this foundation of Jesus. यीशु मसीह के बुनियाद पर बनाए जाना बहुत अच्छा रहता। When will it take place? वो कब होता? When you receive the Holy Spirit. जब अपन पवित्र आत्मा को पाएंगे तब बनाए जाएंगे। Only by that Spirit are you baptized into the body of Jesus the Christ. एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया। It is not some external show. It is not for that. वो किसी और को दिखाने के लिए नहीं है। It is not for you to make yourself something great. मैं बहुत महान हूँ ऐसा दिखाने के लिए नहीं है वो। It is not to say singing songs in the Spirit and be very great. No. गाने गाना, आत्मा में आराधना करना वो नहीं है। It is not to say I'm healing this chronic kidney disease. I'm raising this dead person. It is not for you to do that like that. किडनियों के बीमारियों को मैं चंगा करा और मुर्दों को मैं उठाया, ये सब बातें ढिंडोरा पीटने की नहीं है। It is for you to become a small stone. ये सब किस लिए बोले तो एक छोटा पत्थर की तरह अपन बनाने के लिए। Peter, you are Kepha. पथरस से बोल रहे, पथरस तुम कैफा कहलाओगे। Kepha means small stone. कैफा बोले तो एक छोटा पत्थर, उसका अर्थ। Unless you be a small person, तुम अपने आप को एक छोटा व्यक्ति बनाओगे तो by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से you can stand here in this building of God. तभी तुम ये परमेश्वर के इमारत में ठहर सकोगे। Shall we change the slide, please? But anyway, let me say the 7 stones. 7 पत्थर। Here we show 7 stones. यहाँ पर 7 पत्थर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। And here is a white border. यहाँ पर सफेद बॉर्डर एक है, Inside it is a black border. अंदर में काला बॉर्डर है, Then there is a red border. और अंदर में लाल बॉर्डर है। Then all the background here within this is all yellow. अंदर में पूरा पीला है। One different numbers I have given. There are 7 stones here. पूरे 7 पत्थर है यहाँ पर। This says of your life upon Christ Jesus. ये किसका सादृश्य है बोल तो यीशु मसीह में अपने जीवन के सादृश्य है। The white resembles, as I said, H is the Holy Spirit. ये सफेद बॉर्डर में जो कुछ भी तुम्हें दिखा रहा हूँ ये पवित्र आत्मा का सादृश्य है। And this blackness is sin and Satan. ये काला जो कुछ भी है दिख रहा सो वो पाप और शैतान के सादृश्य है। It is by the conviction which the Holy Spirit gives to a person who is to be saved.
एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा कबूल कराने की वजह से The Holy Spirit only convicts of man of sin. पवित्र आत्मा परमेश्वर पापों को अपने जीवन में कबूल कराते। And it is by the blood of Jesus that you come unto God the Father. यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपन प्रभु में आते। So we in the Father are as stones here. अपन पिता परमेश्वर में पत्थर के जैसे है। And when you receive the Holy Spirit, जिस समय अपन पवित्र आत्मा पाते, you will have the image and the likeness of Jesus the Christ forming in your inner man. अपने अंतरंग का पुरुष यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाते हैं। In the inner man. अंतरंग में यीशु मसीह को पाके रहते Only by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा ही। Where the Spirit of the Lord, there is liberty. जहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर रहते वहाँ पर स्वतंत्रता रहती। And we are able to look at Jesus यीशु मसीह की ओर अपन देख सकते, and understand Him. उनको समझ सकते। And as we are looking at Him, उनको देखते समय we will be transformed as He is from glory to glory. उन्होंने जिस तरह से है महिमा से अधिक महिमा में अपन भी बढ़ते जाते। You should, by the power of the Holy Spirit, when you read the scriptures, if you are not educated, you can hear the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, नहीं पढ़ सके तो उसके सुनने के द्वारा अपन महिमा से अधिक महिमा में बढ़ते जाते By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरपूर होने से। But it depends upon how you maintain a edatagini relationship, a non-stop communion with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से नहीं बिछड़ने का रिश्ता जब अपन रखते तब। One is a small amount of divinity. ये पहले डब्बे में देखे तो थोड़ी पवित्रता, We can find increased levels of the image of Jesus being formed in these people. 2, 3 little more, 4 little more of Jesus. 5 and 6 and 7 is fullness. तो ये मनुष्यों को यीशु मसीह के स्वरूप में बदल रहे सो अपन देख सकते हैं। 2 में थोड़ा बदल गए, 3 में थोड़ा ज्यादा, 4 में थोड़ा ज्यादा, 5 में थोड़ा ज्यादा, 6 में और 7 में फुल यीशु मसीह के स्वरूप में बदल गए सो अपन देख सकते हैं। So this person who is a Christian, यहाँ पर ऐसे ये व्यक्ति ये भी ईसाई है, who is not full of the Holy Spirit and the Word of God, तो ना ये फुल पवित्र आत्मा से भरपूर है ना परमेश्वर के वचन से। he will be having quickly angry. बहुत जल्दी इसको गुस्सा आता, He will be speaking evil of others. दूसरों के बारे में बुरी बातें बोलते रहता, He might talk bad of you. आपके बारे में भी गलत बोले सकते शायद। See, one such person, ऐसा एक व्यक्ति many years ago, बहुत सालों पहले, when my wife is a Roman Catholic by birth, पास्टर जी की पत्नी रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से है। in Pune, when she was going to a fellowship which was a Pentecostal, they say, पेंतिकोस के चर्च में पुणे में उन्होंने जाते थे तब she was very fond of Jesus. उनको यीशु मसीह बोल तो बहुत पसंद है। And she loves to do the work of a nurse which she is in the OT theatre. ओटी थिएटर में उन्होंने नर्स का काम करते थे, वो उनको बहुत पसंद था। From morning till night and evening also she goes on ministering to the doctors, helping them perform their operation. तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में सहायता करने के लिए उन्हें हमेशा तैयार रहते थे। And out of a tired face, एक थके हुए चेहरे से, because of the love for Jesus, यीशु मसीह का जो प्रेम उन्हें पाके है वो प्रेम की वजह से when she went to that church the one day, वो पेंतिकोस चर्च को एक दिन गए। a person who has not much of the Lord and the love of the Lord, तो प्रभु को नहीं पाया सो एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा से नहीं भरा सो एक व्यक्ति, she was tired because she was working throughout the day. तो ये सिस्टर पूरा दिन काम करके थक गए थे, लेकिन वो सिस्टर क्या बोले तो तुम्हारे अंदर पाप है इसलिए तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है बोल के बोले। But what happened? लेकिन क्या हुआ, This Roman Catholic lady, ये रोमन कैथोलिक से आई सो सिस्टर, whom the Holy Spirit and the Lord has been leading to the Lord Jesus, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको यीशु मसीह की ओर चला रहे, she said bye bye. तो उन्होंने बोले ठीक है बाय बोल के बोले वो सिस्टर को और चले गए। You are asked to be a stone, एक पत्थर की तरह अपन बुलाए गए, a living stone. एक जीवित पत्थर रहने के लिए बुलाए गए। In your houses which you have, if one another fight and they go away like this and all, will your house stand? तो अपन घर में रहने वाले एक दूसरे से झगड़ा करके लड़के इधर उधर चले गए तो वो घर रहता क्या? If a house is divided against itself, will it stand? एक घर में अगर फूट डाल दिए तो वो घर स्थिर रह सकता क्या? We should understand our responsibility after being added or built onto the foundation that is Jesus the Christ. After receiving the Holy Spirit, not only you should individually see that you grow in your spiritual life, पवित्र आत्मा पाकर बुनियाद अर्थात यीशु मसीह पर शामिल होने के बाद हमें ये समझना है कि
अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। We should understand that different believers are in different levels of spiritual growth. हमें यह समझना है कि अलग अलग विश्वासी आध्यात्मिक विकास में विभिन्न स्तरों में हैं। And according to the way in which they interact, sometimes the interactions will be pleasant, तो अपन एक दूसरे से बातचीत करते समय वो कभी कभी अच्छा रहता, and sometimes like fleshly type of statements. शारीरिक संबंधी बातों से कई बार बुरी भी होती है। Jesus wants to bring them to eternal life, यीशु उनको अनंत जीवन में लाना चाह रहे हैं, but by your words and by your actions, you might be kicking them away. लेकिन अपने बातों से और कामों से उनको ठोकर मारकर यीशु से दूर कर दे रहे हैं शायद। Beware of offenses. ठुकरावट के बारे में आप सावधान रहो। There will be offenses, ठुकराहटें तो आएंगी, but beware if it comes from you. हाय अगर वो तुमसे आए तो It will be better for a person not to be born rather than he offend one of these little children who believe in me. मुझ पर भरोसा करने वाले बालकों को जो ठोकर खिलाएगा भला होता उसका जन्म ही ना होता। No, he did not tell that. What he said was it's better for him to be born in a store and drowned in the sea. नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोले। उन्होंने क्या बोले, यहाँ भला होता कि चक्की का पट्टा उसके गले में लटकाया जाता और वहाँ समुद्र में डाल दिया जाता। Instead of being like this and casting bad words about others and other believers, ये व्यक्ति की तरह एक दूसरे को दुख पहुंचाने के बातें बोलने से अच्छा it is better for such a person to be born with a stone and cast and drowned in the sea. चक्की का पट्टा उसके गले में लटकाया जाता और समुद्र में डाल दिया जाता, तो अच्छा बोल रहे हैं। Why did Jesus say so? क्यों यीशु मसीह ऐसा बोले? He has died for your salvation. क्योंकि अपने उद्धार के लिए उन्होंने मर गए। And will you by your carelessness and sinful attitudes and fleshly thoughts and words harm such a person and see that they are offended? तो यीशु मसीह अपने प्राण देके एक व्यक्ति को उद्धार दिए, तो अपनी ऐसी वैसी बातों से उनको ठोकर खिलाना अच्छा है क्या? This word has said like that. परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। The woman, whoever is she, वो औरत कोई भी रहने पर भी was offended my wife when she was still a small believer coming to the Lord. जब भी पास्टर जी की पत्नी तभी प्रभु में आ रहे थे, छोटे छोटे बालक की तरह, तभी वो स्त्री वैसा बोलने की वजह से, Her speech offended that lady. वो सिस्टर की वजह से ये औरत ठोकर खाए। She has gone away from the Lord and the Holy Spirit teaching. तो परमेश्वर के पास से, पवित्र आत्मा के पास से उन्हें चले गए। By His mercy, He has called her again. परमेश्वर की महाकृपा से उन्हें वापस प्रभु के पास आए। But the word clearly states, तो परमेश्वर का वचन साफ साफ क्या बोल रहा बोले तो, the woman who has offended that sister, वो सिस्टर मेरे पत्नी से जिस तरह से बात करे, the punishment that will come upon her जो सजा उनके ऊपर आने वाला है will be so severe कितना भयंकर रहता बोले तो वो, that Jesus says यीशु मसीह क्या बोल रहे बोले तो, it would have been better for that woman to have been born with a stone and drowned in the sea. वो स्त्री के गले में वो पट्टा बांध के समुद्र में डाल देना अच्छा है बोल के बोल रहे यीशु मसीह। Church, I ask you to beware. एक कलेशिया, तुम ध्यान से रहना बोल के तुम्हें बता रहे। Whoever are you with one another, तुम एक दूसरे से बातचीत करते समय you should be edifying one another and not pulling them down, throwing them down. एक दूसरे को प्रोत्साहन देके एक दूसरे से प्रेम करने वाले रहना, लेकिन उनको नीचे गिराने वाले नहीं रहना। These are the 7 stones, ये 7 पत्थर है, and there are so many things there. बहुत विषय है। And I think the time 9 which the man of God has said is come. परमेश्वर के दास बोले कि 9 बजे तक बोलो बोल के। Let us pray before that. समाप्त करने से पहले प्रार्थना करेंगे। Beloved Father, प्रिय पिता, we thank you for the way in which you have been speaking to us. प्रभु परमेश्वर, आप हमसे बात करें इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। Unless you work further in the lives of those who believe in your name, आप पर विश्वास करते उन लोगों के जिंदगी में आप अगर कार्य नहीं करे तो the time that has been spent now may go in vain. अब तक जो समय बिता है वो व्यर्थ हो सकता है। But we have that assurance in your word प्रभु, आपके वचन को हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं that it is as the snow that flows down and waters the earth and makes it fruitful. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, Let that work proceed in the lives of these dear believers. हमारे सबके जीवन में उस तरह से ही कार्य कीजिए। And let this spoken word return to you along with all these souls. जो वचन अभी बोला गया ये सब आत्माओं के साथ आपके पास आने दो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, Amen. आमीन।